नमस्ते। कर्मा इन अ कप के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्मा इन अ कप एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि आपका चाय का कप और आपके लाइफ के कप में क्या सिमिलैरिटी है। इज़ इट पॉसिबल कि आपके चाय के कप से आपकी इम्यूनिटी सिप बाय सिप बढ़ाई जाए? इज़ इट पॉसिबल कि लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ, पावर और एनर्जी को एनहांस किया जाए, दैट टू सिप बाय सिप? इस जर्नी में हमारे साथ ही जुड़ी हुई हैं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर. Okay, before starting, let's just wait for Instagram to share with you all that we are now live so that you all can join, and consequently we'll have Dr. Shukla also joining us. Just waiting for Instagram to give me a go ahead. Yes. Hi. So we have people joining in. We have Rishika, we have Sheena, we have Dr. Shukla as well. So, hello everyone. So, we were sharing with you. So we were sharing with you that karma in a cup is a journey of our life and of our chai cup. Hello, Dr. Shukla. Hello. So I was sharing with our viewers that through karma in a cup, we were kind of taking everybody on a journey that how to increase your immunity with a cup of chai, and how to build your life, which is also a cup of joy for you. You know how Ayurveda and astrology can help build you that health and get prosperity for you, help you build that immunity. So that is what our purpose was. Thank you, Rishika. So that was the purpose. And today's episode gets us to a point wherein we are trying to understand the year 2020. So this year everything has just gone, like time has just flown, staying inside. But the energies of sun and moon, they have not diminished. They are still on the same path. They are progressing as they should. And we are celebrating festivals. Only the flavor and fervor of the festivals have changed. Earlier it was a time out of your office, out of your whatever work that you are doing, and it was like a family time. It was a big party time kind of a thing which was going on. But now in the year 2020, things have changed. We are with family. That emotional quotient is on a high, but we are again kind of longing back to go to the previous life. So, so very interesting. I feel our conversation today is going to be, because we are going to share. In fact, you are going to tell us about how and why essentially these festivals were celebrated, whether we still understand them, the creation, the purpose of these festivals, or it has become a long party time for us. And how this year, what we should be doing, how we should be celebrating the festivals. And Dr. Shukla, now your image is little darkened. So पहले की setting अच्छी थी. Yeah, this is better. This is better. Yes. So welcome, Dr. Shukla. It's so good to meet you here. I actually now long for this time to be able to get connected with you on a different episode. Just a minute. Can you hear me, Dr. Shukla? Yeah, I can, Prerna, very well hear you. Just a minute. Sure. So till the time you adjust your it's system, fine. It's fine now. I want to. Great, but your voice is very faint. I can't hear you properly. Hello. You need to be a little louder. Okay. Hello. Yes, it is better. Better now. Hello. Yes, I can hear you now. Now it is better. Okay.
So till that, I want to start the episode by sharing a little story about Ram and my connotation of what I think Ram is. So I think Ra in Sanskrit means radiance. You know, something, a light that is within you, or a light which is around you. And Ma is like myself. You know, mother and myself. So Rama is my connotation of Rama is the light within me. You know, so while it is Lord Rama who came to this planet to give us light, to give us understanding of dharma and all of those things, but I feel that because he was born on an auspicious day of Ram Navami, which of course you would tell us much better the auspiciousness about the tithis, but my connotation is that he Ram is a light within me, son of Dashrath. So what is Dashrath? Dashrath is 10 chariots. Matlab 10 rath is Dashrath, right? And mother was Kaushalya. Kaushalya matlab Kaushal, skill, हमारा कोई कौशल, हमारी कोई skill. So Ram was a combination of 10 rath and skill. So how I collaborate 10 rath is 5 sense organs which we have internally and 5 organs which we have outside of our body. So a combination of all these 10 organs along with our skill, we are kind of every time able to generate that light within us. So if we are going wrong somewhere, we can set it right by combining what is inside and what is outside, having that skill. And each Ram Navami should also be I'm lost at words, but एक मौका मिलता है हमारे को हर रामनवमी पे, अगर हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, गलत राह पे चलने लगते हैं, हमारे अंदर का रावण जागृत हो जाता है, तो हम वापस रामनवमी के दिन अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं. So that is my connotation of Ram Navami and Ram, so to speak. But yeah, I invite you to kind of enlighten us, to tell us what this is all about, what we should be doing this year to make it this year not only remembered as an era of pandemic, but also an year of prosperity, learning, to understand ourselves more. So I invite you. Yeah. Thank you, Prerna. In fact, first and foremost thing, we should always understand two things in our lives. कोई भी time, I mean, each given second or a minute right. is here to either teach you or to give you something. Right. Fine. So is with the year also. Right. And nature knows better what yes. we, I would say, require in a certain minute or in certain year. What is the need of the hour? We do not know. Right. Nature knows. Yes. So what I want to communicate with all of you is that please don't ask for prosperity in material terms, at least from the year 2020. Ask for the prosperity of experiences, learning, understanding your inner self, understanding your relationship, understanding your family, understand your values. So pray to God that please make me richer in yes. these aspects, at least Absolutely. in the year 2020. Because year 2020 is here to teach us
few very enlightening and important lessons of our lives. जैसा कि Absolutely. अभी आपने कहा था प्रेरणा, मैं आपकी बात को एक्सप्लेन कर दूं। आपने कहा था कि त्योहारों का, फेस्टिवल्स का मतलब होता है पार्टी, इंजॉयमेंट, फन एंड फ्रॉलिक, ठीक है। लेकिन उस सबके चलते हम कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भूल गए हैं कि व्हाट वाज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द डे, व्हाई Absolutely. इट इज सेलिब्रेटेड। क्या उस दिन की या उस घड़ी की, दैट मोमेंट, दैट डे, क्या उसकी भी कोई सिग्निफिकेंस है? कोई भी त्योहार, कोई भी फेस्टिवल अगर किसी एक सर्टेन डे पर मनाया जा रहा है तो डेफिनेटली उसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, और उसका कोई ना कोई हिडन मीनिंग भी होगा, जो आई एम श्योर आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जानते, और Of course. हमारी आपकी उम्र के लोग भी शायद उतना डीप नहीं गए हैं। ऑफ कोर्स हम भी नहीं जानते। जिस तरीके से जिस तरीके की हम लोग डेट और टाइम आजकल भूल गए हैं। हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं तो हम कहते हैं क्या दिन है, क्या तारीख है, याद नहीं है। बट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का कैलेंडर सिस्टम अभी भी उतना स्ट्रांग है। उन्हें पता है आज क्या दिन है, आज कौन सा शुक्ल पक्ष है, आज क्या है, कौन सी तिथि है, कौन सा विक्रमी संवत है। हम लोग भी ये बात नहीं जानते, ऑफ कोर्स, विच इज वेरी राइट। बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन understanding all of that. And when we understand that, hopefully we all will be able to kind of follow the traditions more properly in the right way. I'm very sure. What I wanted to say, जैसे अभी आपने राम का जिक्र किया, Right. एंड आई सल्यूट टू योर नॉलेज कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि राम का मतलब होता है कि लाइट विद इन योर सेल्फ, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि राम का नाम सबसे बड़ा है, बिकॉज आपके अंदर जो लाइट है ना, वो सच में सुप्रीम है। बिकॉज Exactly. So ये यू सब एनर्जीज का ही तो खेल है। सब कुछ एनर्जीज का ही खेल है। या एनर्जी भी है। और हर दिन, अब अगर आपने कहा कि राम नवमी को पैदा हुए थे, मतलब नौमी तिथि को पैदा हुए थे, इसलिए राम Right. नवमी मनाई जाती है। डिड वी नो कि भाई नौमी को ही राम पैदा क्यों हुए आखिरकार? दैट वाज reincarnation of Vishnu. Okay. Why Vishnu has decided Navami Tithi? Because Yeah. he could Yeah. have Very interesting. he could have chosen some other day. Yes. Because when we learn and understand about तिथि, एक से लेकर और 14 तक तिथियां होती हैं, और फिर अमावस्या और पूर्णिमा कंप्लीशन ऑफ द साइकिल है। सो जो नौमी तिथि होती है उसको ज्योतिष के हिसाब से या हमारे संस्कारों के हिसाब से रिक्ता तिथि कहा जाता है। Okay, अ डे that means zero. That means khali. एम्प्टी, खाली। Empty. Okay. और उस दिन आप मतलब जो भी काम करते हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन करने के लिए वो दिन अच्छा होता है। किसी चीज Okay. का भी नाश करना है, आपको कोई गंदी आदत छोड़नी है, आपको किसी खराब व्यक्ति को अपने जीवन से निकालना है, कुछ भी ऐसा करना हो तो नौमी को कीजिए। chances of being successful are much higher. Hi. So Ram Can you पैदा, can you hear me? Can yeah, you hear me, Dr. Shukla? yeah, No 100%. problem. I'm not able to. I'm trying to adjust also. Can everybody hear us? Can you all hear me and Dr. Shukla? Can somebody tell us? Sarika, Uh, can you hear us? Rishika said she can hear us. Yeah, I'm kind of
I'm kind of putting my ear to the phone to hear you. No, you are not able to hear me, but I think they are able to hear me. Okay, great, wonderful. Thank you, Sarika. But Thank can you, you hear Amrita. me? Because it is very important for me to you understand what I'm saying. Yes, absolutely. That is why I wanted to check with everyone that if Yeah, they but are able to hear, but I have become hard of no, no, hearing no. today. But I think they are saying they can hear us. They can. So sorry to Ankita interrupt. Let's and just continue. I'll Richika just all put are my there. ear a little closer to the phone. So, so what? So what I was saying कि why Vishnu has chosen that day, जिस दिन Right. केवल और केवल डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है, उस दिन डिस्ट्रक्शन किया राम जाए, पैदा मतलब क्यों हुए थे? भगवान राम और डिस्ट्रक्शन वाले दिन पैदा हुए थे. जी, बिकॉज उनका जो ये अवतार था, जो इनकारनेशन था, वो केवल और केवल डीमंस का डिस्ट्रक्शन करने के लिए ही था. ओह यस. दैट वॉज राम का जो प्राइम गोल था वो यही था कि बुराई को खत्म करना और अच्छाई को स्थापित करना. बिल्कुल. सो रामा और विष्णु हैज चोजन दैट डे. एंड नाउ राइट. व्हेन द तिथि और द डे, वो एज आई सेड वो एम्प्टी होता, रिक्त तिथि कहते हैं उसको. राइट. तो अगर आप राम के जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि राम के जीवन में अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत एम्प्टीनेस थी. Yes, very true. Even after being a king, he was staying in the jungle. Matlab, he spent most of it Yes, in the 14 woods. years, Even after being married. prime years of your life, the young age, उन्होंने जंगल में काट दी. और उसके बाद जब वापसी का चांस था तो पत्नी चली गई. So Agree. nobody understands कि these things, even a tithi or a day, a special day can guide your life. Right. Right. So he had everything. He was son of the biggest king. Gift king. He had Sita as his wife, and again two beautiful sons. But Hmm. then he's never stayed in his No, kingdom. no. He never stayed with his wife. He never stayed with his children also. Yeah. So he was devoid of the family life completely, be it on parents or husband and wife. And Yes. oh God, I never thought on those lines. It's just amazing to know. Yeah. So astrology जो है, आप लोगों को अपना बर्थडे आप मनाते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से. आई ऑलवेज से चेक आउट द तिथि यू वर बोर्न. आप मे बी आप अपनी लाइफ का पर्पस जान जाते हैं केवल और केवल एक तिथि जानकर. व्हाई यू आर हियर. Absolutely. सेम लॉर्ड कृष्णा, ही हैज टेकन बर्थ ऑन अष्टमी. Right. अष्टमी इज फॉर विक्ट्री, इसको कहते हैं जया तिथि. Right. Victory over others. Krishna Right. was a warrior. Krishna was, king, very successful king. Right. He has won all the wars he has fought. Right. Right. All the And wars. Yes. yeah, and such people who are born on Ashtami Tithi, they are full of, skills like dancing, music, debates. And Lord Krishna was, filled with 16 आर्ट्स, 16 कलाओं से युक्त कहा जाता है कृष्ण को. Absolutely. So So this an artist, a musician, a debater, dancer dancer, yeah, and and very debater. skillful in enticing people, and then strong and willful and witty. Wow. So सब लोगों को इनफैक्ट हम इतना ज्यादा पाश्चात्य और वेस्टर्न उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि हमने ये सोचा ही नहीं कि कितना रिच और कितना एक्यूरेट
हमारा सिस्टम हो सकता है। हो सकता है. I completely understand. So how then the question would be what these different tithis would mean and how to identify which tithi you are born on. या दैट इज सिंपल। अभी तो आप कंप्यूटर में भी डालेंगे तो आपको कंप्यूटर भी बता देता है कि व्हाट वाज द हिंदी तिथि ऑन दैट डे। सो टुडे Okay. तो मतलब इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट एनीथिंग। आपका कंप्यूटर सब कुछ बताता है, इट्स Right. विद ऑन योर फिंगर टिप्स। लेकिन आपको उसका मीनिंग समझाने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई जानकार चाहिए, Chahiye. एस्ट्रोलॉजर चाहिए। बट हाँ, आप We अपनी have तिथि बहुत या तो वो आप आराम से जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग जो बात करेंगे प्रेरणा, वो ये है कि हम अपने रिचुअल्स, अपने फेस्टिवल्स और इन सब पर आज आपने मुझे पहले से कहा है कि मैं इन पर, तो मैं आपको इसीलिए एक ये बैकग्राउंड दे रही थी कि ठीक है. व्हाई अ सर्टेन डे is celebrated and what is the significance of that day, why it is celebrated Right. on that day. So Absolutely. yeah, So will be very helpful for our viewers also. So just recapping that if for everybody to understand that your English calendar, the date of birth that you have, you can Google and check your tithi, yeah, and on that tithi, what are the benefits or what is it that you are really born with? If you are yes, born on Navami, if you are born on Ashtami, all of those things. yes. Then we can of course check with you what are the benefits and how we can enhance. So if somebody is Yeah, born on Ashtami and is really skillful, that person can enhance his skill and that would be beneficial for him that is because that he is the has the use. innate Yeah, ability to be that born is the on use those. of astrology. Yeah, that is the use. Yes, yes, absolutely, absolutely. So Dr. Shukla, then understanding that importance of these festivals, how, so I'm again not able to hear. I don't know what is the challenge. Can you give me a second to kind of adjust? Yeah, Yeah, the voice is very low today. Okay, I'm not able to hear. Can you give me a earphone or something? Okay, okay. So yes, Dr. Shukla. So tell us the significance of various festivals that are going to. So we just the um, various festivals like the Purnimas, like the Diwali, Rakhi, all of those festivals and their significance and what we should be doing this year. I'm trying to set this up yeah, so yeah, that yeah, I'm able to hear you properly. yeah. Hello, is this better? But now I think, but now I am not able to hear you. It seems you are on mute. No, I'm not able to hear you. Not at all. Without the phone, I will just be little closer so people looking at the screen might get scared of such a big face on their screens. Yeah. Yeah. So So क्या yes, है? Dr. Shukla, Yeah. take us through. प्रेरणा क्या है कि can't hear you either. I mean, किसी को भी कोई भी नहीं सुन पा रहा. What is the issue? Right. Hello. If a yes or no would be helpful if you all can hear us. Both of us, please, please. Yeah, both of us. So while technology has been such a challenge for all of us earlier, everyone was so busy in their technological life. But I think this lockdown technology has given us a better platform. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you. If you all can hear, yes, we can continue. Whatever challenge was is now gone. Yeah. Okay. Thank you. Thank Thank you. you, Rishika. Thank you. Yeah. So, Dr. Shukla, tell us the significance and how we can
do what we should be doing about these festivals which are upcoming, because everything would be celebrated now locked in the house. It will not be a big, huge party. We all will have to kind of manage with whatever we have, and at home and things like that. So we want to understand what is the best way to celebrate festivals this year, and in the right way, so that the essence of festival is maintained and we are also kind of benefiting from the same. देखिए क्या है कि इनफैक्ट कहीं ना कहीं हम ग्लैमर में, ठीक है, पॉम्प एंड शो में अपनी कल्चर के एसेंस को भूल गए। राइट। जैसे कि हम एक औरतों के सबसे बड़े फेस्टिवल करवा चौथ की बात कर लेते हैं, विच इज अपकमिंग ऑल्सो इन फ्यू मंथ्स। करवा चौथ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सारे फेस्टिवल्स, ऑलमोस्ट ऑल, आर बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ सन और मून। एब्सोल्युटली राइट। और ये केवल और केवल आप अपना हिंदू का ही बात नहीं हो रही है, हिंदू, क्योंकि हमारे व्यूअर्स सब कहीं से आ सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपका ईद जो है वो भी चंद्रमा के मूवमेंट पर ही है। उसका मूवमेंट कैसे कब होता है, ईद उसी पर है, आपकी बैसाखी भी उसी पर है। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब कहने का है कि जितने भी इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं त्योहार, फेस्टिवल्स, they all are based on the motion of two planets. They are sun and moon. And because जो सन के फेस्टिवल्स हैं वो दोनों ही जो बड़े हैं, वो एक तो है बैसाखी जिसको आप कहते हैं, और दूसरा है मकर संक्रांति, जिस दिन आप बहुत सारी वो करते हैं, उसको कहीं आप गुड़ी पड़वा कहते हैं, कहीं आप पोंगल कहते हैं, कुछ भी, पर ये एक बड़ा मूवमेंट होता है। सो और बाकी आपका करवा चौथ हो, आपका रक्षाबंधन हो, आपकी दिवाली है, होली है, ये सब अमावस्या पूर्णिमा के बीच में ही घूमती हैं। दिवाली को छोड़कर ज्यादातर त्योहार, रक्षाबंधन पूर्णिमा, होली पूर्णिमा, बिकॉज पूर्णिमा का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ मून साइकिल। यस। तो कोई भी नया काम, उस नया इरा जो शुरू होता है वो पूर्णिमा के बाद नया महीना शुरू होता है, न्यू मून, फिर उसके बाद बोलते हैं नया समय शुरू होता है। सो कोई भी हमारा जो त्योहार है वो इसीलिए पूर्णिमा पर होता है ज्यादातर, कि भाई आज, अब जैसे रक्षाबंधन है तो वो एक साइकिल का कंप्लीशन है भाई बहन के प्यार का। ठीक है, कि फिर से याद दिलाते हैं कि मतलब जस्ट कहते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, कि नहीं शी इज माय सिस्टर, यू रीअश्योर योरसेल्फ कि वी आर देयर फॉर ईच अदर। सो एक नई बिगिनिंग उस रिलेशनशिप की होती है फिर से दोबारा। और सूर्य के जो त्योहार हैं वो ज्यादा से ज्यादा होते हैं आपके वनस्पतियों के ऊपर। जैसे बैसाखी जो है वो आपकी फसल पकने पर मनाई जाती है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। उसका मतलब होता है क्योंकि सूर्य जो है वनस्पतियों का ओनर है, और आई मीन एवरी सिंगल जो भी हम खाते हैं पीते हैं, अनाज, ग्रेन्स हो, दाल हो, चावल, व्हाटएवर, इज रूल्ड बाय सन। So we just pay our tribute or thank you, we say thank you to sun, क्योंकि अपने सूर्य जब उच्च राशि में जाते हैं एरीज में, तब बैसाखी होती है। यानी कि आप इस बार हमें बहुत धन, मतलब बहुत अन्न का धन दे दे। एब्सोल्युटली। सो इसलिए, और बाकी सारे के सारे त्योहार जो है वो पूर्णिमा या अमावस्या पर होते हैं। अब एक और बात आपने कभी अगर गौर की हो तो आपने देखा होगा जितने भी स्पिरिचुअली हाई या एलिवेटेड लोग हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग अचीवर है, प्लीज गो एंड चेक इट। आई हैव डन दिस, आई हैव डन अ रिसर्च ऑन इट। ऑल आर बोर्न ऑन पूर्णिमा। रियली?
Be it Buddha, be it Guru Nanak, be it Lakshmi ji, Hanuman ji, और मतलब जित इवन माइकल जैक्सन, Ah, okay, they okay. all I was are, not aware. yeah, they all are born on पूर्णिमा, क्योंकि वो एक नए इरा को शुरू करने आते हैं. What I said, Mm, पूर्णिमा के बाद नया इरा yeah, होगा. अब right. चाहे वो म्यूजिक में नया इरा हो, चाहे बुद्ध पूरा बुद्धिज्म बना के चले जाएं, चाहे गुरु नानक जी सिख पंथ की स्थापना कर दे, बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा. New era. सो And we पूर्णिमा, celebrate, yeah, so we celebrate Purnima each year to kind of thank them and also to kind of think inside that this is again a new chance for us. ऑफ हम कोर्स, अपना लाइफ का कप पूरा कर सकते हैं, फिर से भर सकते हैं, है ना. सो जितने भी अगर अगर हम इसको आज की लैंग्वेज में देखें तो न्यू मून रिचुअल्स होते हैं. इट इज ऑल अबाउट द सेम थिंग, द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वी अंडरस्टैंड. सो हमारी वाली लैंग्वेज जो जो इंडियन ऑथेंटिक लैंग्वेज रही है साइंस की, चाहे आयुर्वेदा हो या एस्ट्रोलॉजी हो, जो कि खोती चली गई, उसी से ये नई चीजें डेवलप हुई और निकल कर देखिए आई. अब देखिए अगर वेस्टर्न जो कल्चर है, दे आर स्मार्टर. वो हमारी ही चीजों को दूसरी पैकेजिंग के साथ बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं. दिस इज आयरनी ऑफ आवर फेट, आई वुड से, कि हम अपने रिचुअल्स को नहीं मानकर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू मून्स इंटेंशन सेटिंग, intention settings, right? यू We नो, are talking about, yeah, फुल sitting मून under the मेडिटेशन, moon. full moon meditation. हाँ, And these things were, thousands of years back, they were told in Hindu culture that these 2 days absolutely. are very important to set your intentions. आप न्यू मून के दिन अपना इंटेंशन सेट कीजिए और उसके बाद पूरा महीना उसको पाने के लिए काम कीजिए और पूर्णिमासी तक उसको कवर कीजिए एंड सेलिब्रेट द कंप्लीशन. This is the Right, movement of the and you moon. would be successful. Yeah, and you would be successful You would be successful. But कोई सुनने because को you are तैयार नहीं है. और हिंदू कल्चर के लिए कहा जाता है कि बहुत ऑर्थोडॉक्स है. No, so Dr. we Shukla, are I think more we are more modern, Prerna, from any race. any race, I agree. So that is why, when we were discussing karma in a cup, that is what our purpose was, to get this ancient knowledge in a recipe which modern world understands, you know. Yeah. So it is so simple. So either you go and Instagram full moon rituals, or you go and sit with your grandparents and understand from them. It is very simple. It is one and the same thing. Only Yeah, it is packaging one is different. packaging is different. Yeah. So, अब हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये कि त्योहारों को इस साल कैसे मनाएं. कैसे मनाएं? जब हम लॉक्ड So, हैं और हमारे मीन्स भी मिनिमम हैं. So I would say only one thing. Try to understand the true significance of each and every festival. yes. इस बार आपके पास समय है कि आप इन चीजों को समझें. गो एंड एनालाइज. गूगल करिए. चलिए, आप लोग गूगल के शौकीन लोग हैं, गूगल कीजिए. So we क्यों have a बोले? viewer, he's saying, Yeah. we have a view, Saurabh, he's saying, I always listened about laws of attraction, but this is a whole new learning for me. Oh, thank you, Saurabh. So, yeah, of course, Saurabh. So laws of attraction or any new scientific, we say it discovery, but Ayurveda and astrology has discovered all of these energies and understood all of the laws of nature from more than 5,000 years now. Yes. So Yes. it's just that. It's just that. And if we are in a country where we celebrate a festival every day. Yes. So when in my previous organization, I remember when we used to make the holiday list of the year. So I would sit with my boss
and I would ask him that Mr. Vora इस साल कौन सी छुट्टियां रखनी है, and as employees we would be like थोड़ी ज्यादा मिल जाए, इसकी भी मिल जाए उसकी भी मिल जाए. तो he used to say कि 33,000 करोड़ देवी देवता हैं, अगर अगर हम हर एक के नाम की छुट्टी देने लगे तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ेगी. But that also made me realize that every day has a significance. Every day is important for some reason or the other. Every day is like a gift. That is why we call it present, because it's like a gift. We can choose what we want to attract. We can choose how we want to live it. We can choose how we want to make it a gift for everyone. So simple सी बात है, celebrate each and every day. Yeah, celebrate each and every day, of course. Each day of your life should be celebrated, because Absolutely. that day is not going to come back in your life ever again. Yeah. Today we are talking, when the talk is over, it will never come back again. Yes. We can record it, but we cannot bring that, the time ever, we can't get it back. So इसलिए हर समय हर क्षण इम्पोर्टेंट है, सेलिब्रेटेड. और जहां तक त्योहारों की बात है, तो पहली चीज मैंने कही कि आप लोग प्लीज उसकी सिग्निफिकेंस को समझें. हो सकता है तो उसकी टेक्निकल सिग्निफिकेंस को भी समझें कि मून का क्या मोशन था, व्हाई दिस इज सेलिब्रेटेड, या इसकी और माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. दूसरा काम ये करें कि पॉम्प एंड शो में इस बार ना फंसें. देखिए क्या होता है कि करवा चौथ का मैं एग्जांपल ले रही थी. इट वॉज सिंपली अ रिचुअल, बिकॉज कहा जाता है कि चौथ का चंद्रमा देखना नहीं चाहिए. इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ टर्मोइल्स और स्टिग्मास इन योर लाइफ. आप देखते हैं ना कि चंद्रमा को हम छन्नी से देखते हैं. उसका पर्पस जानते थे क्या था? क्योंकि चौथ का चंद्रमा डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए. बट ये चौथ तो हर बार आती है. कभी नहीं देखना, कभी भी नहीं देखना चाहिए. हाँ, मेरा जो कहना था कि वो उस दिन आपके जो ग्रह की स्थितियां होती हैं वो ऐसी होती हैं कि आप अपने स्पाउस के लिए अगर कुछ विश करते हैं, वही बात, कोई इंटेंशन सेट करते हैं, दैट मैनिफेस्ट्स. बिकॉज दैट डे मून इज इन दैट स्टेट कि अगर उस दिन आप कोई इंटेंशन सेट करते हैं तो वो मैनिफेस्ट कर जाता है. अब बहुत ज्यादा लंबा मैं यहां पर नहीं समझा पाऊंगी, मे बी सम अदर डे. बट ओनली थिंग दैट सेट गुड इंटेंशंस फॉर योर हस्बैंड, दैट वाज दैट कि भाई उसकी भी उम्र इतनी लंबी हो और वॉट एवर. पर अब क्या हो रहा है, हस्बैंड के लिए इंटेंशन को तो पता नहीं है जी, उसका खर्चा बहुत हो रहा है. पार्लर, साड़ी, गिफ्ट, चाट और पता नहीं क्या क्या. और उसमें कहीं आपका इंटेंशन तो खोकर ही रह गया. तो इस बार गौर करें कि इंटेंशन सेट करने में अपनी एनर्जी लगाएं. भले ही आप खाना खा लेते हैं, इट हार्डली मैटर्स, लेकिन प्लीज मेक श्योर दैट यू थिंक साइलेंटली, क्वाइटली. Close your eyes and set your intentions for your husband's well-being. This is how, at least this year, करवा चौथ should be celebrated. क्योंकि मेहंदी की दुकान पर घुसने से कोरोना का डर भी है. You should not do that. Yes. So आंखें बंद कीजिए, अपने पति के लिए अच्छे इंटेंशन सेट कीजिए, क्योंकि उस दिस कॉस्मोस की पावर ऐसी है, मून की पावर ऐसी है कि वो इंटेंशन मैनिफेस्ट हो जाएगा. तो अगर इसको देखा जाए डॉक्टर, तो उस दिन हम कोई काम नहीं करते हैं, पर्पस है कोई काम ना करने का, सो दैट यू आर काइंड ऑफ meditate, you are free to sit quietly
मौन व्रत रखें, मेडिटेट करें, टू अंडरस्टैंड कि पिछला साल कैसे गया, कैसे हम अपने परिवार के लिए सुख और शांति अगले साल ला सकते हैं, all of that. So it is not only about husband, it is about the family life. It is combined. like कि combined, so इसलिए ये जो rituals बनाए गए वो बनाए गए. If you dress up well, if you eat well, like you do not eat on that day, but then if you dress up well, you will feel good. So with that feel good feeling, with all that love and energy that one gets when they are dressing up, looking good, and all of those things, getting up early in the morning, you are getting that energy, because at that time you are getting the positive energy of the sun, the rising sun. So कितना मतलब सोचा जाए तो कितना vast combination है. But truly it has now become just a party. ब्रह्म मुहूर्त में जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं जिसमें हम करवा चौथ में भी उठते हैं, तो वो एक बहुत इंटेंस टाइम, क्योंकि सूर्य जो है वो निकलने को है और चंद्रमा सेट इन होने को है. ठीक है, रात्रि खत्म हो रही है और सुबह होने को है. एनी टाइम जो भी संधि काल होते हैं, वो मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था किसी अपने इसी प्रोग्राम में, कि संधि काल बहुत पावरफुल होते हैं. सो अगेन कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में जो सपना देखा जाता है, सुबह का सपना सच होता है. तो आप सुबह जो इंटेंशन सेट करते हैं वो भी सच होते हैं. बिल्कुल. तो करवा चौथ में केवल और केवल सरगी खाने के लिए नहीं उठना था जी, इंटेंशन भी अपना अच्छा रखना था. So I have given only one example for like करवा चौथ. लेकिन मैं कहूंगी कि इस वर्ष हर त्योहार को केवल और केवल बहुत सादगी के साथ और उसमें घुसकर, उसमें अंदर जाकर मनाना चाहिए. आप हमें दिवाली के बारे में भी बताइए. दिवाली के लिए देखिए क्या है कि सिंपल सी बात है कि राम वापस आए थे, अमावस्या थी, उस वक्त आपकी तरह एलईडी और ये सब लाइट्स थी नहीं. लोग इतने खुश थे, उन्होंने अपने घर में इतने दीपक जलाए कि राम आए तो उनको लगे कि पूरा प्रकाश है इस वक्त. सो दैट वाज खुशी का वो एक सेलिब्रेशन था. बट अब क्या हो गया है कि अगेन पॉम्प एंड शो, 10 दिन पहले से आप लाइट जलाते हैं, उसको वो करते रहते हैं. आई वुड से नो, ओनली बाय दियाज, जो हमारे जो इंडियन मार्केट में जो लोग बना रहे हैं, हमारे हस्तशिल्पी जो बना रहे हैं, वो दिया खरीदिए और उसमें आप सरसों के तेल से 5, 11, 21 वॉट एवर ऑड नंबर्स में होने चाहिए, उनको आप अपने घर में जलाएं और उनसे ही बस रोशनी करें. एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट रामा डिड. He sacrificed his 14 years of life and celebration took place. आप कौन सा हार्ड वर्क उससे पहले, दिवाली से पहले करते हैं जो आप पार्टी करते हैं? राइट. राम की खुशी आप मना रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखिए. What he taught. सेलिब्रेशन केवल और केवल कठिन तपस्या के बाद होना चाहिए. आई एग्री. रोज सेलिब्रेशन मतलब आप बिना बात नाच रहे हैं, इट्स नॉट गुड. अंदर की खुशी आप मना रहे हैं तो अंदर अंदर मनाइए. ईच डे इज सेलिब्रेशन. बट त्योहार का सिग्निफिकेंस और जो कहते हैं ना नॉलेज का जो एक ट्रांसमिशन था, वो ये था कि राम बहुत ही कठिन तपस्या, बहुत ही सब कुछ ऐसा करके लौटे थे, इसलिए पूरा देश, पूरा उनका अयोध्या उनका स्वागत कर रहा था. सो आप सिग्निफिकेंस के लिए 5 दिए जरूर जलाएं, लेकिन इस वक्त तेल वेस्ट ना करें. किसी गरीब को 1 बोतल तेल दे दें प्लीज. अपने घर 5 दिए जलाइए. त्योहार मनाने का तरीका बदल दीजिए. बिल्कुल. बहुत मिठाइयां लाने की कोई जरूरत नहीं है. गरीबों को अनाज दान कर दीजिए. इस वर्ष आप दिवाली ऐसे मनाएं तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा पूरे देश के लिए.
पूरे देश, बिल्कुल। इस वक्त एक्चुअली जितना हम कुछ सालों से कह रहे थे पॉल्यूशन की वजह से पटाखे नहीं जलाएं, नेचर हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो यस, हमें साइलेंटली कोरोना की वजह से कितना कुछ समझा गया। वो समझा गया कि अपने देश में बनी हुई चीजें सपोर्ट, लोकल आर्टिसंस हैं जो दिए बनाते हैं, विच इज सच अ प्रोडक्ट, मतलब मिट्टी से बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। मिल जाता है, कुछ कुछ आप उसकी वजह, देयर इज नुकसान नो नहीं। पैकेजिंग रिक्वायर्ड। हाँ, यस, देयर इज नो पैकेजिंग रिक्वायर्ड, देयर इज नो लॉजिस्टिक्स रिक्वायर्ड। यू सेव सो मच ऑन फ्यूल, यू सेव सो मच ऑन एडवर्टाइजिंग एंड कितना कुछ आप वो करिए ना। पटाखे ऑफ कोर्स इज causes so much of pollution. So कोरोना हमें काफी कुछ सिखा के जा रहा है। दैट इज वाई। डॉक्टर शुक्ला, मैं ये भी जानना चाहूंगी, सिंस वी आर टुगेदर, विजयदशमी जिस दिन रावण का वध किया गया था, दशहरा, उसका भी कोई महत्व है? दशमी पे ही क्यों किया गया? बिल्कुल, देखिए दशमी की जो तिथि है, वो जो रूलर है दशमी तिथि की, हर तिथि का कोई ना कोई रूलर है, यू नो, दैट डे इज रूल्ड बाय सम डेटी, ठीक है। राइट, सो दशमी इज रूल्ड बाय धर्मराज। राइट, धर्मराज जो कि पूरी कॉस्मोस में बैलेंसिंग एक्ट बनाते हैं, यू नो, राइट। सच्चाई का, अच्छाई का, बुराई का, वो जो अभी भी बैलेंसिंग एक्ट ही हो रहा है, आई एम श्योर हाँ, इस साल भी यही हो बिल्कुल, रहा है। सो बिल्कुल। धर्मराज का दिन है, और उस दिन आप काम जो कंप्लीशन का, क्योंकि इसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तिथि, पूर्ण तिथि ही है, कोई भी काम आप पूरा करना चाहते हैं तो यू कैन यूज, यू नो, चूज दशमी फॉर दैट डे। सो राम नवमी को भी एक दिन पहले भी रावण को मार सकते थे, 2 दिन बाद भी मार सकते थे, बट नो, बिकॉज दैट डे वॉज फिक्स्ड टू एस्टेब्लिश धर्म। राइट, So राइट। that day, specific day was chosen by Rama to maintain or establish dharma on that day. कि ओह, बुराई के दैट इज ऊपर अच्छाई की विजय इसी दिन होगी, क्योंकि दैट डे इज डेडिकेटेड टू धर्मराज। दैट इज Every राइट। every festival has deeper meaning. Deeper meaning. I completely agree. So it has deeper meaning in astrology. If we go about Ayurveda, again it has a lot of deep meanings. Celebrated with the energies of sun and moon. So जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो एक पुरानी फसल के जाने का और नई फसल के आने का कॉम्बिनेशन होता है वहां पे। जो प्रसाद बनाए जाते हैं वो प्रसाद भी नेचर को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए, सीजन को देखते हुए डिसाइड किए जाते हैं। सो से फॉर एग्जाम्पल रामनवमी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें जो प्रसाद बनाया जाता है, चना या सूजी का हलवा और पूरी, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। आप इतने दिन के फास्ट के बाद होते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। सो आप बहुत सारी इस तरीके की चीजें डाइजेस्ट नहीं कर सकते। यू नीड अ काइंड ऑफ बैलेंस्ड फूड। तो आपने काले चने लिए, काले चने जो कि टॉक्सिन्स निकालते हैं, मेटाबॉलिज्म एनहांस करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव फायर को, मतलब डाइजेशन को स्मूथ करते हैं। सो आपने काले चने बनाए। सेमोलिना, सूजी नेचुरली थोड़ी सी स्वीट होती है, तो वो आपका बैलेंस करती है सॉल्टीनेस और स्वीटनेस इन द काइंड ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग। एंड Yes. ऑफ कोर्स पूरी is fat, is Energy. grains, energy. So that is a combination. So आजकल जो बन गया है काले चने हलवा और पूरी, जो अब हमें बहुत टेस्टी लगता है, उसके पीछे एक एक आयुर्वेदिक रिचुअल है पूरी एक, यस कि यस। कहानी है, एक साइंस है पूरी की उस दिन ही ये क्यों खाया जाता है। तो उसका एक पर्पज है, जैसे रामनवमी का पर्पज आपने एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में बताया, उसी तरह आयुर्वेदिक साइंस में भी। आई एम श्योर all of these festivals have their own rituals, have their own prasad. अगर हम सिर्फ गुड़ देखें कितना सिंपल है, आई एम श्योर बहुत सारे फेस्टिवल्स में विद इन आवर कंट्री गुड़ यूज किया जाता है प्रसाद के लिए। सो गुड़ एक एक
कंप्लीट मील है, उसके अंदर सारे वो सॉफ्ट मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे जिंक है, कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम। सो ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है। और हमारा पर्पस क्या है, हम किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप में क्यों जा रहे हैं? टू गेट दैट माइंड पीसफुलनेस इन आवर माइंड, and then in prasad when we are getting good, that is getting enhanced, खाने के बाद हमें अच्छा लगेगा। और ये जो मिनरल्स हैं ये इतनी छोटी क्वांटिटी में है कि बहुत ही कम चीजों में पूरी तरह से मिल पाते हैं, या हमारी डेली डाइट में पूरी तरह से हमें मिल नहीं पाते। सो व्हेन यू आर बैक from that place of worship, of course the aura and energy of that place of worship is different. You are sitting there with just one intention, that is also helping you. There's this calmness and quietness there, and then you are getting prasad, which is again an energy giving. So हम actually कभी सोचते नहीं है, सोचे तो everything has a deeper meaning. मकर संक्रांति होती है ना, आप लोग क्या दान करते हैं? काली दाल और चावल खिचड़ी दान करते हैं, गजक दान करते हैं, गुड़ और तिल का मिश्रण। अब कभी किसी ने इसका सिग्निफिकेंस नहीं सोचा, because sun is entering in the sign of Capricorn, which is ruled by Saturn. Sun is father and Saturn is child, and they both don't share good relationship. At least Saturn does not consider Sun as his father or a good father. But Sun considers Saturn as a son, because father के लिए son है, बेटा बेटा है. So when Sun is entering in the sign of Capricorn, मकर राशि में एंटर करते हैं, तो हम गुड़ और तिल को मिलाकर जो चीज बनाई जाती है, पीस कर, गजक, रेवड़ी, यानी कि हम वो इस वक्त ये इसलिए करते हैं कि वी आर ट्राइंग टू मिंगल बोथ एनर्जीज, कि उनके अंदर स्वीटनेस आ जाए, उनका रिलेशनशिप बढ़िया हो। तो सूर्य के लिए हम जो चीजें देते हैं उनकी इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और उस वक्त वता जो है वो जनरली इनबैलेंस रहता है, तो तिल वता को बैलेंस करने के लिए होता है। सो मतलब जिसने भी ये कंबाइन किया होगा, आई रियली सैल्यूट देम, मतलब व्हाट अ नॉलेज। बिकॉज जैगरी, ज्योतिष में जैगरी जो है सूर्य के लिए यूज होती है, मतलब सूर्य की प्रकृति का है, और जो तिल है, काला तिल जो है, वो सैटर्न की प्रकृति है। सो जस्ट सी। हाँ। और हम वही चीजें, इट्स सच अ गुड कॉम्बिनेशन, इट इज सच अ, आई वुड से एनलाइटनिंग वर्ल्ड, कि अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो कोई भी चीज बेसलेस नहीं है। और हम पता नहीं किस उसमें कहते हैं कि मतलब सब कुछ बेसलेस है, जबकि कुछ भी बेसलेस नहीं है। We do not understand this basis, that is why we are saying it is baseless. It is our lack of knowledge. But I'm sure. So I would like to tell our viewers that this year is to celebrate these festivals. You have all the time to be with your parents and grandparents. Sit with them, understand these rituals, and then Google them. That is what I said. Please Google them. Yeah, then Google them to completely know, and then celebrate them in a way that they should be celebrated, and pass on that knowledge to the coming generation. बिल्कुल, that is very important. अदरवाइज हमारे सारी की सारी जो जिसको कहते हैं ना एकदम खजाना जो है नॉलेज का, यूं ही कहीं खराब ना हो जाए। बिल्कुल। It's very important our children to understand these things, that they are not baseless. और वैसे भी सर्दी में गुड़ और तिल जिनकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दी में वैसे भी फायदा करती है ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल। सो हर चीज सीजन के हिसाब से है,
ग्रहों की एनर्जी के हिसाब से है और उस मौसम की जरूरत के हिसाब से है। और अगर आज के हम डाइटरी प्लान्स को देखें, सो उसके हिसाब से भी कैलोरी फ्री फूड्स है। हाँ, वो भी ठीक है। सो जिस भी साइंस को आप बिलीव करना चाहते हैं, जस्ट हैव एन ओपन माइंड, है ना? Yes, सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, yes. very helpful. So I really admire your knowledge, नहीं and नहीं नहीं। the purpose of sharing it, Dr. Shishya. At Chai Veda also, my purpose has always been to kind of share the knowledge, uh, uh, rather than selling the product. So my mentors, they tell me that you are one entrepreneur who we have to teach how to sell. You know, because you are more into, I want to share this knowledge. I want people to kind of create these tea blends for themselves. And then my mentors tell them, फिर खरीदेगा कौन अगर तुम सबको सिखा दोगे तो? But yeah, the innate purpose is to kind of package this ancient knowledge and wisdom and serve it so that everyone can benefit. That's I might know just 1%, the minuscule knowledge of whatever is there देखिए, एस्ट्रोलॉजी in के लिए भी आई वुड से इट्स एन ओशन। शायद मैं अभी केवल और केवल कुछ ड्रॉप्स जान पाई। Sure, right, ज्योतिष तो ओशन है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी इसमें से कुछ बूंदे शायद समझ पाई होंगी। सो आई कैन right, नॉट कॉल माई सेल्फ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। नो, आई एम अ हम्बल बिगिनर, आई वुड से। right. So Rishika is saying if we can have an episode 2 to understand deeply. Sure, Rishika. So the purpose of Karma in a Cup has been this. So viewers can share whatever they want to know, and we would always be happy to put some light on the thoughts. ऑफ कोर्स। Help them get the energies of the planet, whether through Ayurveda or through astrology, to their cup. यस, एब्सोल्युटली। Right, right. So Dr. Shukla, I would take your leave. Instagram would also kind of end या, this very थैंक यू, soon in about 2 minutes. थैंक यू सो मच। Really, really, yeah, I'm really थैंक्स फॉर thankful for हैविंग मी। you for, नो नो नो, थैंक्स yeah. फॉर हैविंग मी, थैंक यू। So wonderful. Thank you so much. See you soon. Bye bye.